میں ہوں اقبال انجم عوام کی آواز چینل سے آج آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج ہمارے جو مہمان بنے ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج تو نہیں ہے، لیکن میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کا تعارف کراؤں۔ میری مراد چودھری ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب، جو نہ صرف تحصیل بھر میں بلکہ ضلع بھر میں اپنے شعبے میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ تو آج ہم نے انہیں زحمت دی ہے کہ ہم ان سے کرونا وائرس کے حوالے سے آپ تک ان کے مفید مشورے اور جو دوسرے اس BHU سیری میں جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے لا سکیں۔ تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، آپ کا انتہائی میں مشکور ہوں کہ آپ نے عوام کی آواز چینل کو قائم دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ کٹ پہنی ہوئی ہے، تو آپ اس کٹ کے حوالے سے کس حد تک مطمئن ہیں کہ یہ آپ کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ یہ پراپر کٹ تو نہیں ہے، ٹھیک یہ خالی گاؤن ہے، سرجیکل گاؤن ہے، ٹھیک تو کسی حد تک اس سے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن جو پراپر کٹ ہوتی ہے وہ ابھی تک ہمیں اویلیبل نہیں ہے۔ ابھی تک آپ کو BHU سیری میں اس طرح کی کٹ جو محفوظ رکھتی ہے کسی بھی ملازم کو جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، ابھی تک آپ کو اویل نہیں ہو سکی؟ جی ابھی تک نہیں ہے۔ نہیں مل سکی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ایک سینئر ڈاکٹر ہیں اور OPD جو ہے وہ بند ہے پورے آزاد کشمیر کے اندر، آپ پھر بھی یہاں BHU سیری میں آپ یہاں تشریف فرما ہیں، تو آپ صرف ان دنوں میں کرونا وائرس سے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو چیک اپ کرنے کے لیے آتے ہیں، یا خدا نخواستہ کوئی ایسا مریض آ جاتا ہے، یا کہ کنٹرول لائن کے جو متاثرین ہوتے ہیں، جو زخمی ہوتے ہیں یا کوئی انجر ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے آپ یہاں دیکھیں جی، جس طرح ایمرجنسی ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہے، اس میں تو یہ ہے کہ جتنے بھی ایمرجنسیز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کا حکم ہے۔ ٹھیک اس کے علاوہ جو بھی مریض ہاسپٹل میں آ جائے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت کم لوگ آتے ہیں، وہی آتے ہیں جنہیں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک تو جو بھی BHU میں آ جائے اسے ہم دیکھتے ہیں اور اسے ٹریٹ کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے OPD میں جو آ جائے مریض، چاہے اسے بخار ہے، نزلہ ہے یا ویسے کوئی دوسری پرابلم، پھر بھی آپ سے چیک کرتے ہیں؟ جی چیک کرنا پڑتا ہے، انکار نہیں کر سکتے۔ انکار نہیں کر سکتے آپ۔ تو ان دنوں میں کتنی OPD ہے، کتنے مریضوں کو آپ روزانہ چیک کرتے ہیں یہاں پہ؟ دیکھو OPD بہت کم ہے، 10 سے 15 مریض پر ڈے ہوتے ہیں، جبکہ عام جو دنوں میں وہ 60 سے 70 مریض پر ڈے ہوتے ہیں۔ اچھا، عام دنوں میں 60 سے 70 OPD ہے یہاں پہ جو آپ چیک کرتے ہیں؟ تو ٹھیک ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو BHU سیری ہے یہ خاصی ایک تاریخ رکھتی ہے اس حوالے سے کہ بہت پہلے یہاں پہ یہ بلڈنگ بنی، بہت پہلے یہاں پہ یہ BHU قائم ہوا، تو اس وقت سے لے کر آج دن تک اس کی بلڈنگ میں کوئی توسیع ہوئی، کوئی سٹاف میں اضافہ ہوا؟ میرا تو یہاں پہ تقریباً پچھلے 13 سال سے میں بھی یہاں پہ ہوں، ٹھیک تو اس عرصے میں، اس سے پہلے تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس عرصے میں تو کوئی توسیع نہیں ہوئی۔ ٹھیک اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ بلڈنگ کی جو مین بلڈنگ ہے اس کی ریپیئر ہوئی ہے، تو باقی بلڈنگ بڑی پرانی ہے، اور یہ پرانی ڈسپینسری کی بلڈنگ ہے، BHU کی پراپر بلڈنگ نہیں ہے، ٹھیک تو اسی میں BHU اتنے عرصے سے چل رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہم نے آگے تحریک بھی کی ہوئی ہے، بلکہ بہت دفعہ کی ہے، ٹھیک۔ تو امید رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ویسے جو بلڈنگ ہے اس وقت تک آپ کی یہ ضروریات کو پورا کر رہی ہے؟ جی نہیں، اس طرح کی ضروریات تو پورا نہیں ہو رہی ہیں، مثلاً ہمارے پاس پیشنٹ ریٹین کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہم نے بیڈز جو 1 2 3 بیڈز لگائے ہوئے ہیں ایمرجنسی میں، ایک API میں لگایا ہوا ہے، ایک مین نرسنگ اسٹیشن کے روم میں لگایا ہوا ہے، ٹھیک ایک میں نے جو MI روم ہے، معائنہ کرنے والا روم، اس میں لگایا ہوا ہے۔ ٹھیک تو اب یہ ہے کہ پراپر بیڈ رکھنے کی بھی جگہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ، اور جو MCH سینٹر ہے وہ یہاں پہ کوارٹر ہے اس میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک تو یہ ہماری BHU کی ضروریات کے مطابق پورا نہیں ہے۔ اس کے بعد کوئی رہائشی کوارٹر بھی ہمارے پاس نہیں ہے، جو رہائشی کوارٹر ہے اس میں ہم نے 2 کمرے ہیں، ایک میں جو ہے وہ MCH سینٹر رکھا ہوا ہے، دوسرے میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا جو آفس ہے اور سسٹم ہے سارا وہ رکھا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ کوئی پراپر یہاں پہ کوئی مستقل پوسٹ نہیں ہے کوئی CMO کی، یا آپ جیسے ہمارے ڈاکٹر کی یہاں پہ پوسٹ نہیں ہے؟ اور جی، تو اس میں یہ ہوا ہے کہ میں
यहाँ पे 17 में आया था, ठीक 17 स्केल में, फिर मुझे मेरा 18 हो गया यहीं पे, फिर यहीं पे मेरा 19 हो गया, उसके बाद मेरा तबादला हो गया था क्योंकि 19 की ये जो है पोस्ट नहीं है, तो THQ अस्पताल में तबादला हो गया था। लेकिन वो क्योंकि ये सीट जो ऑक्यूपाइड है वो मेरा इसी सीट पे प्रमोशन होके चला गया, लेकिन ये जो पोस्ट है इसमें शायद नई पोस्ट क्रिएट नहीं हुई अभी तक। जी नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर साहब के यहाँ पे कोई प्रॉपर अभी तक पोस्ट नहीं है CMO की, इसके बावजूद और ना ही इनके मुतलका यहाँ पे पोस्ट है, चूँकि ये ग्रेड 19 के ऑफिसर हैं और इनकी यहाँ पे पोस्ट नहीं, लेकिन फिर भी ये आवाम की फलाह के लिए यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, लोगों को चेकअप करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। डॉक्टर साहब, वैसे आपको यहाँ पे इस BHU में कितना टाइम देते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर? रोज़ाना तकरीबन 3 से 4 घंटे। 4 घंटे रोज़ाना आप टाइम देते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि आजकल तो चूँकि कोरोना वायरस है, पेशेंट भी कम आते हैं। मैं आपको खुद बताते खुद अपनी आंखों से भी देखता रहा हूँ कि जब कंट्रोल लाइन के हालात ख़राब हुआ करते थे, इंडियन आर्मी जो जारियत करती थी सिविल आबादी पर, तो बेशुमार लोग यहाँ पर ज़ख्मी हुआ करते थे, तो यहाँ पर वो लाया करते थे। तो आप बड़ी ही जो है ये जुर्रत के साथ, बड़ी हमदर्दी के साथ उनको चेकअप करना, फिर टाइम का लिमिट नहीं होता था कि बाज़ का मैंने खुद देखा आपको कि आप रात की 11-12 बजे तक यहाँ पे रहते हैं, तो उसमें आपके क्या कोई पाबंद थे महकमे की जानब से, या कि आपके अंदर जज्बा था? देखें, ऐसी बात नहीं है। मेडिकल के जितने मेरे कोलीग्स भी हैं और तमाम लोग भी हैं, इनका कोई टाइम नहीं होता। ठीक। मेडिकल में जो भी आता है उसके लिए ये है कि उसके 24 आवर्स उसको तैयार रहना पड़ता है। ठीक। यहाँ से छुट्टी करके हम बाद में भी 24 घंटे ऑन कॉल है। ठीक। अगर हम स्टेशन से बाहर जाते हैं या डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाते हैं तो हम हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करके जाते हैं और साथ बंदोबस्त करके जाते हैं कि हमारी अदम मौजूदगी में कौन कौन क्या करेगा। ठीक। 24 घंटे हमारी ड्यूटी है। तमाम हेल्थ स्टाफ की कोई भी इमरजेंसी हो किसी जगह भी, पूरे आज़ाद कश्मीर में, पूरे पाकिस्तान में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इसकी 24 घंटे ड्यूटी है। इसमें ये बाई लॉ ड्यूटी है, उसमें मेरा कोई नहीं है, वो मेरी ड्यूटी थी जो मैं कर रहा हूँ। ठीक। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल है, ये बताएं कि ये जो आपके बेसिक हेल्थ यूनिट है, ये इसके मुल्का कितनी आबादी लगती है जो यहाँ पे उनको आप ट्रीट करते हैं? देखें, यूनियन कौंसिल सेरी है जो, ये आबादी तो बहुत कम है, तकरीबन 18,000 के करीब। ठीक। लेकिन इसके मुल्का यूनियन कौंसिल खोड़ से, यूनियन कौंसिल खनका कटेड़ा से, ये उसकी जो टाई है पटवार, इससे, और इवन यूनियन कौंसिल बंडली से जो आलिया बंडली है पहले कोयटा में थी, उससे ये बहुत सारे मरीज़ यहाँ पे ट्रेन करते हैं और हमारी एवरेज तकरीबन 1000 मरीज़ पर मंथ यहाँ पे होता है, जो खाली इस यूनियन कौंसिल शहरी की आबादी से ज़्यादा है। ठीक। डॉक्टर साहब, आपसे जो है कोरोना वायरस के मतलब आपसे कुछ सवालात मैं करूँगा। सर, ये बताएं कि ये जो वायरस है बुनियादी तौर पर ये चाइना से शुरू हुआ, फिर पूरे यूरोप में ये फैलता गया, तो बाज़ लोगों का या बाज़ डॉक्टरों का ये ख्याल है कि ये उन ममालिक में ज़्यादा वायरस है जहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, या उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें प्रोटीन की कमी होती है, तो क्या ये दुरुस्त है? देखें, इसमें कोई हतमी बात अभी तक पूरी दुनिया में रिसर्च में नहीं आई। ठीक। मुख्तलिफ़ किस्म की स्पेकुलेशंस हैं। जितने भी वायरस हैं उनके लिए जर्नल ये है कि वो सर्दी में ज़्यादा होते हैं, सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होते हैं और गर्मियों के मौसम में कम होते हैं। इसमें जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं, सबसे पहले चाइना की ऑब्जर्वेशंस, उसके बाद यूरोपीय ममालिक की ऑब्जर्वेशंस ही हैं सारी, उसमें कोई चीज़ प्रूव्ड नहीं है। कितने घंटे रहता है, कितने घंटे ये सरफेस पे रहता है, कितने घंटे कपड़ों पे रहता है, सही। ये सारी चीज़ें अभी तक हतमी तौर पर साबित नहीं हुई है। ठीक। तो अल्लाह ताला हमें भी हिदायत दे, और अल्लाह ताला ये जो नाजुल हुआ है शायद अल्लाह ताला का अज़ाब है, अल्लाह ताला हम इस काबिल नहीं है, तो अल्लाह हम पे रहम करे। मसला ये है कि इसमें जो अभी तक सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ प्रूव हुई है इससे बचाव के लिए, वो ये है सोशल डिस्टेंसिंग। ठीक। कि नाज़रीन, आप ये सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब आपके लिए ये पैगाम दे रहे हैं, जो आप इस चीज़ को गौर से सुनें और देखें कि क्या क्या हमें करना चाहिए इसके लिए।
किस तरह इस कोरोना वायरस से बचा जा सकता है? जी डॉक्टर साहब आप तो चाहिए। एक तो सोशल डिस्टेंसिंग है कि कम अज़ कम जो है वो 6 फीट का फासला रखें। इस वजह से ये इसलिए कह रहे हैं कि जो भी बंदा खांसता है या छींकता है तो उसका 6 फीट तक जो है वो उसका लाभेदन या उसकी सिक्रीशंस जा सकती हैं, तो वो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकती है। दूसरा ये है क्योंकि ये मुंह और नाक के ज़रिए, आंखों के ज़रिए दाखिल होता है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि मुंह और नाक की प्रोटेक्शन करें और हो सके तो आंखों की भी प्रोटेक्शन करें। तीसरा ये चीज़ है कि हम हर चीज़ को हाथ लगाते हैं, हाथ ज़्यादा यूज़ होते हैं तो हाथों पे ये जाता है, यही हाथ हम मुंह पे लगाते हैं, खुद भी इन्फेक्ट होते हैं और दूसरी चीज़ों को लगाते हैं, वहाँ पे भी ये वायरस जाता है। तो हम कहते हैं कि हाथ अपने बार बार धोएं। बाहर निकलें तो ग्लव्स वगैरह भी पहन लें, बहुत अच्छा है, लेकिन बार बार हाथ धोना और हाथ 20 सेकंड के लिए कम अज़ कम धोने चाहिए। और वो धोने का तरीका ये है कि पूरे हाथों को साबुन लगाएं अच्छे तरीके से साबुन लगा के उसके बाद 5 दफ़ा इस तरह उंगलियों में 5 दफ़ा इस तरह, उसके बाद 5 दफ़ा ये अंगूठा और इसकी बैक साइड पे, फिर 5 दफ़ा ये अंगूठा और ये बैक साइड पे, उसके बाद 5 दफ़ा ये उंगलियां और साथ हथेली अपनी साफ़ करें इसकी, फिर इसकी साफ़ करें और फिर हाथ धो लें। 20 सेकंड इसलिए कहते हैं कि ये कोई साबुन भी आप यूज़ कर सकते हैं, असल में कोई जरासीम कुछ या दूसरा तीसरा इसकी ज़रूरत नहीं है। ये इसके बाहर एक लेयर होती है वायरस की जो लिपिड लेयर कहते हैं, तो वो साबुन में घुलती है और वो मर जाता है वायरस, तो वो घुलने में 20 सेकंड लगते हैं। इसलिए कहते हैं कि हम 20 सेकंड तक अपने साबुन से हाथ धोएं। सिर्फ साबुन से हाथ धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर साहब खुराक भी आजकल जो कोरोना वायरस के दौरान लोग जो हैं खुराक किस हवाले से ज़्यादा लें? उसमें प्रोटीन होनी चाहिए या कौन से विटामिन होने चाहिए? देखें जो प्रोटीन्स का है, प्रोटीन्स का शायद आप इम्यूनिटी के हवाले से बात कर रहे हैं। जी। बॉडी में एक ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं और वो वायरसेस के ख़िलाफ़ होती हैं। ये क्योंकि नया वायरस है तो ऑलरेडी इसकी इम्यूनिटी नहीं है। आम लोगों में जो है वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के तमाम वायरसेस की इम्यूनिटी थोड़ी बहुत होती है जिसको भी कहीं हुआ है, तो ये क्योंकि नया है इसकी इम्यूनिटी बिल्कुल नहीं है। तो इम्यूनिटी डेवलप है जो ये भी जो है वो आप जितने सेहतमंद होंगे इतनी इम्यूनिटी होगी, उसमें कोई मोटा छोटा इस तरह के नहीं। जितने बीमार लोग हैं ऑलरेडी, जिनको खासकर कोई दिल की प्रॉब्लम है, दमे की प्रॉब्लम है, सिगरेट पीने वाले लोग हैं, जॉन्डिस वाले लोग हैं, या कोई पुराने बेड रिडन लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, इन लोगों में इस बीमारी का ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी या क़ुव्वत मदाफ़त कम होती है। उसमें ऐसा प्रोटीन्स का कोई रोल नहीं है। अच्छी खुराक खाएं, प्रोटीन्स भी लें, कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, पानी भी लें, विटामिन भी लें, सारा कुछ अच्छी खुराक, ताज़ा पकी हुई और साफ़ सुथरी खुराक खाएं। तो ऐसी कोई स्पेशल चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है और ना स्पेशल चीज़ खाने से इसका कुछ इम्यूनिटी का इम्प्रूवमेंट का तल्लुक है। ताज़ा पकी हुई अच्छी खुराक खाएं, फ्रूट वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें, सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो इससे ये अच्छी इम्यूनिटी बढ़ती है। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आज आपने अवाम की आवाज़ चैनल को टाइम दिया। तो नाजरीन अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा अवाम की आवाज़ चैनल से। इंशाअल्लाह आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक